Hello everyone, welcome to Pinkcity Podcast. I know season 1 end हो चुका है, but this is New Year's bonus episode for all of you who sent us so much love and supported us throughout this year. 2020 is finally coming to end, and this is the time for new positive resolutions and fitness goals. क्या आप भी अपने 20s में हैं और ऑलरेडी बुढ़ा फील करते हैं? जब आपसे कोई पूछता है कि क्या तुम वर्कआउट करते हो तो आपके पास एक ही आंसर होता है कि मेरे पास टाइम कहाँ है? I didn't mean this as a personal attack because मैं खुद ही ऐसा हूँ. So dear listeners, you are not alone. और अगर आप उनमें से हैं जो डेली वर्कआउट करते हैं, then I would like to say I got mad respect for you because we all know how much effort it takes. But workout or no workout, Rohan Sharma, our today's guest, is someone who holds the ability to inspire each and every one of us. Rohan never fails to take out time from his daily routine to work out. In fact, not only does he work out every day, he is literally a fitness freak, a full-time HATHA Yoga instructor, a businessman, and also an engineer. Kaafi crazy, right? Rohan, however, did not have it easy. He was quite a fat kid in school who was constantly bullied. और high school में आके he took up gym and martial arts to put an end to his weight problems. Graduation के बाद रोहन का पैशन फिटनेस की तरफ इतना बढ़ गया कि जॉब के साथ साथ उन्होंने योगा सीखा और सिखाया भी. And now finally he is in the beautiful Netherlands living a dream life as he owns his own yoga and fitness venture there called Shaiva. So guys, this holiday season, Pinkcity Podcast gives you an inspiring journey of a local Jaipur guy who has now become the Netherlands fitness guru, Mr. Rohan Sharma. Enjoy. Hello everyone, welcome to Pinkcity Podcast. Today we have with us Jaipur ka Sharma ji ka ladka who gone rogue with time to become Netherlands fitness guru, Mr. Rohan Sharma with us. Hi Rohan, how are you? Hi Lakshaya. Well, thanks for the kind words that you introduced me with. I'm actually the dark spot when it comes to Sharma ji ke ladke. And what pleasure to be here. बात करने को मिल रही है किसी जयपुर वाले से जो इतनी अच्छी बात करता है. So thanks. Thank you so much. Thank you. The first introduction that I got about you was he's a guy from Jaipur who has started his own business in Netherlands, that too into fitness industry. और engineer है, MBA भी है. We will be covering that all. But सबसे पहले आप मुझे ये समझाओ कि what is fitness according to you? Is it being toned with jawline and abs, or it's being healthy, not getting sick frequently, or it has to be both? Well, the way I see it, healthy होना और एक अच्छी jawline होना, abs होना, ये सारे byproducts हैं. And these are the byproducts of being capable. And when you are capable, then you were back then, maybe 2 days back, maybe 2 years back, then you're also more fitter than you were yesterday or 2 years back. So I think fitness जैसे हम कहते हैं, that's an attempt to make your body more capable to do things which it couldn't do. और उससे फिर आपके ये सारे बाई प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं. आप हेल्दी हो जाते हो, आपकी जॉ लाइन आ जाती है, आपके एब्स आ जाते हैं. सो ऑल दीज आर बाई प्रोडक्ट्स. So why one needs to be capable? मतलब हम लोग usually the motivation is to become more sexy. Or for elderly people it could be कि मुझे बीमार कम होना है, I want to live long. So what will the motivation? Capable क्यों होना है? You know, when you look at it, 5,000 years back, 5,000 साल पहले जो आदमी होता था, उसे दिन भर पैदल चलना पड़ता था खाने पानी की ढूंढने के लिए, भागना पड़ता था जानवरों से, पहाड़ चढ़ने पड़ जाते थे ताकि उसे कोई जान से ना मार दें. So all of these functional movements were a part of his life, and then we evolved into these smarter humans who had machines do their work for them. और वहाँ हम हार गए. वहाँ हम कुर्सी पे इतना बैठने लग गए कि हम अब ना तो पहाड़ चढ़ सकते हैं, ना जानवरों से भाग सकते हैं, ना खाना पानी के लिए भाग सकते हैं. एंड दैट्स व्हेन जो हमारी बॉडी जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन की गई थी, ज़्यादा केपेबल होने के लिए, हर वो चीज़ करने के लिए जो जानवर नहीं कर सकते, we are losing out on that. I think if you look at it from that perspective, that's one thing. The other thing is I teach Hatha Yoga over here, and you know, when someone does Hatha Yoga and when someone doesn't do it, you can spot the difference in everything they do, even in the way they age. Rohan, I've always perceived Dutch people as fitter than Indian population because they cycle everywhere. They are a first world country, so they have better infrastructure, better quality food. So in and all, they are healthier than us, what I think. And आप MBA करने गए थे, you went for MBA to Netherlands. So how come this fit country gave you the opportunity to be a fitness entrepreneur? ऐसा क्या market gap ढूंढा आपने कि Shaiva could come up and take place? Yeah, so when I came to Netherlands last year December में मैं आया था. Peak of winter, negative में temperature है, बहुत ठंड है,
अंधेरा है, बारिश हो रही है, बहुत ग्लूमी वेदर है, मतलब बहुत डिप्रेसिंग। और इट्स सो एक्सपेंसिव, स्पेशली जब आप पूरी लाइफ आईएनआर में कमा रहे हो और उसके बाद में आप एक ऐसी जगह पहुंचते हो जहाँ आईएनआर की कोई वैल्यू है नहीं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड दैट्स वेयर आई थॉट कि क्यों ना मैं थोड़ा बहुत अपनी सेविंग्स बर्न करने के बजाय थ्रू फिटनेस, थ्रू द स्किल आई एक्वायर्ड ओवर ईयर्स, मैं यहाँ पे लोगों को वो स्किल इम्पार्ट करता हूँ, एंड दैट इज़ योगा। और तब तक मुझे इस मार्केट का पता नहीं था क्योंकि मैंने कभी सिखाया नहीं था, नया नया था कंट्री में। पर एक चीज़ मैंने देखी कि हर जगह, हर जिम योगा क्लासेस ऑफर कर रहा है। सो दैट्स वेयर आई थॉट कि चलो डिमांड तो है, तभी लोग कर रहे हैं और तभी ऑफर हो रहा है। एंड दैट्स वेयर आई थॉट ओके आई शुड अप्लाई टू जिम्स। मैंने हर जिम में अपना रिज्यूमे भेजा, कहीं से कोई जवाब नहीं आया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो 1 महीने तक हर जगह रिज्यूमेज भेजने के बाद में, पिक्चर्स अपनी भेजने के बाद में, one fine day there's this gym called David Lloyd's. It's actually the largest fitness chain in the entire Europe. उनका एक काफ़ी बड़ा सेंटर है यहाँ मेरे शहर में, रॉटरडैम में. So these guys, they texted me that a usual regular instructor for Hatha Yoga is not available, so why don't you replace him for the day and we'll pay you in cash. मैंने कहा ठीक है, संडे है, कुछ काम है नहीं, ये कर लेते हैं. I went in there, took a class. My first class with non-Indians in a way जो इंडिया से बाहर है, और एक या दो नॉन इंडियन नहीं है, सारे नॉन इंडियन है, सभी गोरे हैं. तो ऑब्वियसली व्हेन यू एंटर अ क्लास लाइक दैट यू लाइक, क्या ये सब लोग मेरी इंग्लिश समझ पाएंगे, क्या इन्हें सिर्फ डच आती है, ऑल दीज क्वेश्चंस. एंड समहाउ आई मैनेज्ड थ्रू दैट 1 hour, जैसे हमेशा करता था वैसे ही, कुछ नया नहीं. आफ्टर दैट आवर लोग रिसेप्शन पे गए, वहाँ पे मेरा फिटनेस मैनेजर बैठता है, उससे मिले, उसको कहा कि हमें ये बंदा जिम में चाहिए. एंड विद इन एन आवर आई वॉज हायर्ड. मैं वहीं अपना जो कैश अमाउंट था सिखाने का वो लेने गया था, उन्होंने मुझसे वहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया. एंड सिंस देन इट्स बीन अ ईयर दैट आई हैव बीन टीचिंग विद देम. ओवरऑल आई हैव डन लाइक 200+ sessions, workshops, events in the park, group classes, personal sessions. So has been a good year in terms of learning क्योंकि MBA किया, has been a good year in terms of teaching क्योंकि बहुत सिखाया है. So आप वहाँ पे MBA करने गए थे, ये आप साथ साथ कर रहे थे? ये मेरा वीकेंड एजेंडा रहता है, सैटरडेज एंड संडेज. बाकी 5 दिन MBA, पढ़ाई, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, सारी चीज़ें. इन 2 दिन सिर्फ ट्रेनिंग और कुछ नहीं. जो आपकी अब कंपनी है शाइवा, जो आपने अभी खोली है, उसका आइडिया कैसा है आपको? यहाँ जब मैं आया, मैंने क्लासेस लेनी शुरू की, आई रियलाइज़ कि ये लोग फिट बहुत हैं. इनमें फ़िट रहने का वो जो एक होता है, एक डिटर्मिनेशन, एंथुजियाज़म, वो बहुत ज़्यादा है, बेहिसाब है. यहाँ पे वाइल ग्रोइंग अप, ऑल दीज किड्स दे आर इनटू सम स्पोर्ट और द अदर. हर दूसरा बंदा यहाँ पे हॉकी या फुटबॉल खेल रहा होता है. दे साइकिल फॉर देयर लाइफ, लिटरली दे डोंट यूज़ एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. यहाँ पे जितने लोग नहीं होती साइकिल से. पर यहाँ पे एक फिटनेस का कंपोनेंट है जो ये लोग मिस करते हैं, दैट इज़ मोबिलिटी. ये लोग स्ट्रॉन्ग हैं, इनमें एंड्योरेंस है, पर एक चीज़ जो ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जो इनकी बॉडीज़ में नहीं है, वो है मोबिलिटी. आप इन्हें कहो कि झुको और कुछ सामान उठा दो, इफ़ दे डोंट बेंड देयर नीज दे विल स्नैप इनटू हाफ. सो दे आर दैट रिजिड. Seriously? In my world, strength without mobility is nothing but rigidity. So that's where I realized कि हाँ, यहाँ पे योगा की इतनी ज़रूरत क्यों है, क्यों हर फिटनेस क्लब यहाँ पे योगा सिखाना चाह रहा है, and why do people need it so much? Because they're so stiff. It's also to attribute to the cold weather. It's also to attribute to long hours of exercising, which really makes everything very stiff if you don't work on your mobility. तो तब मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे एक मार्केट है. शाइवा का मॉडल क्या है, मतलब व्हाट इज द इनकम मॉडल ऑफ शाइवा? मैं MBA करने से पहले 5 साल एज अ स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट काम करता था. ऑल द वाइट कॉलर स्टाफ, चेयर पे बैठो, प्रेजेंटेशंस बनाओ, पूरे दिन बैठे रहो, क्लाइंट से बात करो, चीज़ें बेचो, स्ट्रैटेजी बेचो, विच इज़ एसेंशियली नथिंग बट हवा. यू डोंट हैव अ टेंजिबल प्रोडक्ट, यू जस्ट सेलिंग योर थॉट्स. सो and that's where I realized young people who are in their late 20s, early 30s, वो एक क्वेश्चन कैरी कर रहे हैं ऑफिस में अपने बैक को सपोर्ट देने के लिए. 100%. You must have seen that too, right? Yeah, I've done a corporate job before this, and not only cushion, backrest, laptop stand, everything.
because पूरा Exactly, दिन you have to exactly. sit on a chair and work. And when you look at this generation of people जो हमसे just senior हैं, जो अभी 40-50 की उम्र में हैं, वो लोग I think India is the hub of knee replacements, diabetes, spine issues. मतलब हम एक बहुत ही बीमार पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हमारा वर्क एथिक इतना सॉलिड है कि हम अपनी वेलनेस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम उस काम में ही लगे रहते हैं. And I could see it that everyone, especially if you're a part of that white collar workforce, you need that training. आपको ज़रूरत है कि आप उठो, थोड़े सूर्य नमस्कार करो, थोड़े आसन करो, थोड़ा अपनी बॉडी पे ध्यान दो, और लोग दे नहीं पाते हैं. So I had understanding of this starting from my corporate days, and then after coming to Netherlands, यहाँ पे भी कुछ नया नहीं था. यहाँ पे भी जो लोग ऑफिस में बैठते हैं वो परेशानी है. So one fine day, there is a student of mine. She is ex-Israeli military. उसने 3-4 साल इज़राइल की आर्मी में सर्व किया है. वो एक दिन मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि रोहन, मैं 12 साल से बैक और नी इश्यूज से स्ट्रगल कर रही हूँ और मैं 2 महीने से तुम्हारी क्लासेस हर संडे अटेंड कर रही हूँ, और मुझे इन दिनों इतना बेटर फील हो रहा है अपनी बैक में, नीज़ में, अपनी ओवरऑल मोबिलिटी में, बॉडी में, चलने में, हर एक चीज़ में, कि ऐसा मुझे पिछले 12 साल में कभी लगा नहीं है. एंड दैट्स वेयर इट रियली क्लिक्ड कि यार, मैं एक ऑफरिंग है मेरे पास जिसकी बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है. एंड दैट्स वेयर I came up with the idea of Shaiva. And when you talk of its revenue streams, it's essentially for people who sit on a chair all day in front of a laptop, killing their knees, back and neck. And that's where I thought these people need to be my primary audience, right? इन लोगों का सबसे पहले ध्यान रखना, क्योंकि मैं उस जगह रह चुका हूँ, मैंने लोगों को देखा है और आज भी देख रहा हूँ. तो the revenue stream comes from helping companies ensure the wellness of their employees, and that's where the whole business model is built. You want companies to come and hire you for the betterment of their employees. Exactly. And that's not just the betterment of their employees, because from what I do and what I teach, I teach Hatha Yoga, Pranayama and meditation. And these are the things that are not just gonna, change the life of those employees. That's also gonna change the productivity of those employees eventually, and which will translate into something good for those companies. So it's going to be investment for those corporate companies. Exactly. Basically. Exactly. Nice. तो अब मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये कि अगर कोई शाइवा का सेशन अटेंड नहीं कर सकता, जो नीदरलैंड्स में नहीं है, बट प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड है जो आप कह रहे हो मोबिलिटी की, बिकॉज दैट सेम यू हैव ऑब्जर्व, दैट सेम आई हैव ऑब्जर्व, दैट सेम यू आर ऑब्जर्विंग राइट नाउ इन अदर कंट्रीज. सो व्हाट कैन बी डन फॉर द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग, जिनके पेरेंट्स देख रहे हैं, जो कॉर्पोरेट लाइफ में स्टार्ट कर चुके हैं? बिकॉज द थिंग इज, माई फ्रेंड्स हु आर वर्किंग फ्रॉम होम राइट नाउ, ऑफिस में तो फिर भी टेबल चेयर था, यहाँ पे तो बेड पे बैठे हैं, ठीक है, पूरा दिन लैप्स पे लैपटॉप है, कभी लेट रहे हैं, कभी कर रहे हैं, नेक इश्यूज हैं, मेडिसिन ले रहे हैं. इन वन ऑफ द ऑफिस आई हैव सीन समवन जिसने अलार्म लगा रखा है, जो हर 15 मिनट बाद अपनी चेयर से उठता है और एक वॉक करता है, फिर आके बैठता है. सो पीपल डोंट नो. ओके, सो द थिंग इज पीपल डोंट नो हाउ टू मेंटेन देयर बॉडी पॉस्चर्स, और क्या करना चाहिए उसके बारे में लोगों को नहीं पता है, लोग हाथ पैर मार रहे हैं बस. सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी डन? So when I started Shaiva, एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि मुझे इस ब्रांड को, इस कंपनी को नेदरलैंड्स तक लिमिट नहीं करना है, क्योंकि मेरी जोग्राफिकल प्रेजेंस नेदरलैंड्स तक है. दैट डजंट मीन कि ये वहीं तक रह जाएं. मुझे पता है अगले 1 साल जितनी हम सर्विसेज देंगे वो सब ऑनलाइन होंगी. और एंड दैट्स वेयर वी आर ऑल्सो इन टॉक्स विद वन ऑफ द मेजर बैंक्स इन इंडिया टू कीप देयर वर्कफोर्स हेल्दी, बिकॉज we know that it's going to be an online procedure going ahead, and people are now very comfortable with the whole online thing. तो रोहन, एक बात बताओ, जैसे आप बैंगलोर में जॉब कर रहे थे इससे पहले, राइट? एंड यू वेंट टू डू योर MBA देयर. सो कैसे एक आउटसाइडर अपना बिजनेस खोल सकता है? डू दे अलाउ यू टू स्टार्ट योर ओन थिंग ऑन योर स्टूडेंट वीजा, और व्हाट आर द लीगैलिटीज टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन यूरोप? राइट. सो ये एक ऐसा सवाल है जो मेरे मन में बहुत बार आया है जब मैं इंडिया में था,
कि अगर मुझे बाहर बिजनेस शुरू करना है तो कैसे करूँ, एंड आई रियली डिडंट हैव अ आंसर टू दैट उस टाइम पे। तो अभी मैं जब यहाँ आया तो मेरे स्टूडेंट वीज़ा में आई कैन वर्क फॉर समवन 16 आवर्स अ वीक, विच इज़ अ लॉट। मतलब 16 घंटे योगा सिखाना बहुत एफर्ट का काम है, तो वो मेरे लिए एक तरह से फुल टाइम है। और दूसरी चीज़ है कि आप अगर अपना खुद का वेंचर शुरू कर रहे हो, इन दैट यू कैन पुट अनलिमिटेड आवर्स इवन विद द स्टूडेंट वीज़ा। Okay. So the good thing is I have my visa sorted till June 2022. तो 2 साल के आसपास का मेरे पास वीज़ा अभी और है। एंड इन द मीन टाइम वंस यू आर हेयर और इवन इफ़ यू आर नॉट हेयर, if you have an idea that kind of helps the Dutch economy or helps the Dutch people in one way or the other, there is something known as the entrepreneurship visa, which you can apply for either while being in the Netherlands, और अगर आप इंडिया में भी बैठे हो, कल से अगर लक्ष्य को अपना पॉडकास्ट नेदरलैंड से शुरू करना है तो वो कर सकता है। पर उसके लिए आपको एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देना पड़ता है कि ठीक है, मेरा कंपनी रजिस्टर्ड है, मेरे काम की ये वैल्यू है, मेरा ये टर्नओवर है। Okay. तो that's where I registered my company this month only in the beginning of December, and now it's a Dutch company, so yeah, Wow. अच्छी फीलिंग आ रही है काफ़ी। हाँ, सुन के भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, so if it helps their population, then they allow you to do that. बाकी एक तरीका और है लक्ष्य, आई एम नॉट श्योर इफ योर ऑडियंस वांट्स इट, बट अगर आप किसी डच लड़की से शादी कर लेते हो दैट आल्सो हेल्प्स। वो तो all नॉट ऑन time माय प्लान्स बट दैट आल्सो हेल्प्स। cool. As Pinkcity Podcast is all about the career thing, it's a career podcast. So I want to dive in your history because, as they say, that history tells you how the present was made. So आपका present तो मैंने देख लिया, मुझे आपकी history जाननी है. That what I know is you are an engineer who did MBA then. So जयपुर से हो तो मुझे एक थोड़ा मेरा stereotypical सा question है that did engineering choose you or you chose engineering? That's an interesting one, I must say. क्योंकि इंडिया में इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है, इंडिया में इंजीनियरिंग एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है, सब कर रहे हैं। तो मैं पढ़ने में अच्छा था, एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर आया, अच्छी रैंक आई, घर वालों ने कहा कि बेटा इंजीनियरिंग कर लो। और तब तक हमें कुछ आइडिया था नहीं, इट वॉजंट द केस कि आई एम एन आर्टिस्ट हु वाज फोर्स्ड इनटू इट, इट्स जस्ट दैट आई हैड नो अदर ऑप्शन। तो यही ठीक था और यही ठीक लगा, तो दैट्स वेयर आई एनरोल्ड इनटू इंजीनियरिंग। एट दैट टाइम आई वाज at that time I was 18, and I was a fat kid before I started my engineering. I was in school, I was a fat kid. आज भी मेरे स्कूल के दोस्त मुझे जम्बू बुलाते हैं। Jambu. I was so fat. Okay. जम्बू, Jumbo. like Jumbo. the elephant thing. जम्बू। Yeah, got it. तो तो आज भी स्कूल के दोस्त जम्बो बुलाते हैं इसीलिए, because I was so fat. और and I think that's where the whole thing started कि नहीं, इसका कुछ करना है। ये जो मैं 200 मीटर चल के, दौड़ के भी नहीं, चल के हाफ जाता हूँ, आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। सो आई थिंक दैट्स वेयर द रूट्स लाई। आपने कहा आप मोटे थे, सो व्हाट मेड यू सो व्हाट मेड जंबो कन्वर्ट इनटू अ फिटनेस गुरु? So basically, as you introduced, शर्मा जी का लड़का, I actually look like अग्रवाल स्वीट्स वालों का लड़का। That's a very inner Rajasthan. हाँ, that's a वो मैं कह रहा हूँ कि काफी inner जयपुर जोक हो गया। Exactly. घर पे पढ़ता रहता था, पढ़ाई में अच्छा था, पढ़ाई में मन भी लगता था। काफी लोग बाहर खेलने जाते थे, मैं बुक्स पढ़ता था, और कोर्स की बुक्स खत्म हो जाती थी तो और बुक्स लाके पढ़ता था, पर पढ़ता रहता था, बैठा रहता था, खाता रहता था। एंड लॉट ऑफ ब्लेम टू माय मॉम फॉर बीइंग सो गुड एट इट, कि जितना लोग 25-26 की उम्र में खा पाते हैं, यू नो, व्हेन दे आर एट द पीक ऑफ देयर यूथ, मैं 13-14 की उम्र में खा रहा था। तो अच्छा, I think that sedentary lifestyle, घर पे बैठे रहना, खेलना नहीं, खाते रहना, that made me really fat. So fat कि मतलब देख के हंस दे कोई बंदा कि अरे ये क्या जा रहा है। That was the case. और एक पॉइंट तक आप सुन भी लेते हो, when you know starts growing, when puberty hits you and you kind of suddenly develop that newfound self-respect, आपको लगता है यार नहीं यार ये तो मुझसे नहीं सुना जाएगा, and you know you start changing things up,
जिम जाते हो पहले दिन, आपको एक इंस्ट्रक्टर कहता है कि भैया एक पुशअप करके दिखाओ, आपसे नहीं होता है। आपसे 2 महीने तक एक पुशअप नहीं हो पाता, आप इतने मोटे। That's where I took it very violently personal that I have to do something about it. It's now been 10 years, a bit of lifting experience, a bit of experience in martial arts, 10 years of full-time yoga training, and सही सही लोग मिलते गए और उन्होंने भी काफी हेल्प की। I think when I was in my early 20s, maybe 21, 22, I met this guy from Indian Navy. He is now a lieutenant commander, maybe promoted, I don't know. But yeah, back when we were still speaking very regularly, he was a lieutenant commander. तो वो मेरे कॉलेज से एमटेक परस्यू कर रहे थे और मैं वहाँ बैचलर्स डिग्री अपनी परस्यू कर रहा था। और हमारा स्पोर्ट्स इवेंट था कॉलेज में। ही वाज फिनोमिनल, 40-year-old guy and just too fit for the young kids. Okay. मैं गया उनके हॉस्टल रूम पे and I was like, कुछ सिखा दो, हाथ जोड़ के कुछ भी सिखा दो, सिखा दो। This fellow had an aura around him कि फिजिकल ट्रेनिंग में, स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया। वो टीचिंग असिस्टेंट थे और सिखाते थे तो बहुत बढ़िया, प्रोफेशनलिज्म का लेवल अलग, लोग उनसे बात करना चाहते थे। और मैं लिटरली उनके रूम पे जाके मैं कहा कुछ सिखा दो प्रभु। ही वाज काइंड इनफ। तो जब ऐसा कोई आदमी आपको मिलता है और आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता है व्हेन यू आर किक्ड इन द बट सो हार्ड, it kind of kills all your mental limitations, and that's when you realize your body is so much more capable than you ever thought it is, and that stayed with me for so long. आज भी हर 5-6 महीने में मैं उन्हें प्रोग्रेस पिक्चर्स भेजता हूँ कि now I can do this, now I can do front levers, now I can do like 500 pull-ups a day, now I can hold asanas for this long. Mentors are really important to guide you, I guess. जैसे कहते हैं कि mentors ढूंढने चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि जो आपको अपने एक्सपीरियंस का बेनिफिट दें और आपको जल्दी सक्सेस मिल पाएगी जो भी आप अचीव करना चाह रहे हो लाइफ के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जैसे वो मेंटर थे, जैसे जब मैंने इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेशन किया, वहाँ मेरे मेंटर्स, कोचेस थे, गुरुज थे जिन्होंने मुझे एकदम फाइनल न्यूएंसेस ऑफ योगा सिखाया। और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के बिना मैं कोशिश तो कर रहा होता पर ना तो डायरेक्शन होती और ना आउटपुट होता। रोहन, व्हाट वाज योर फर्स्ट अप्रोच टू फिटनेस? मतलब जिम, योगा, और आप क्या करते हो? आपने जो छठ योगा करते हो या व्हाट एल्स यू डू? आई गेस यू डू, मैंने जो फोटोग्राफ्स देखी इंस्टाग्राम पे, यू डू मार्शल आर्ट्स आल्सो। सो एक पैटर्न क्या था करने का? सो आई थिंक मैं 12th में था तब आई रियलाइज कि मुझे इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है। और कुछ नॉलेज नहीं थी तो जिम चला गया। मुझे लगा कि जो लोग जिम में हैं उनको नॉलेज होगी, पर आज मेरा व्यू बिल्कुल चेंज है, क्योंकि जो लोग जिम में हैं उनको भी शायद उतनी नॉलेज नहीं है। लोग करके, गलतियों से सीख के फिर लोगों को सिखाने लग जाते हैं, which is not the best approach. I recommend कि जो लोग सिखा रहे हैं they should have that responsibility कि आप खुद well educated हो इस मैटर में और तभी आप वो ही सिखा रहे हो जो आप अच्छे से सीख चुके हो। So I think that's an issue with the whole fitness industry out there. यहाँ पे जो लोग योगा सिखाते हैं वो योगा के नाम पे कुछ और ही करा देते हैं। मतलब एक कार्डियो सा चल रहा होता है, मैंने देखा था एक दिन, तो काफी दे रहा था मैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, 12th में एक जिम से शुरू किया, साल भर में ढंग से खाया, वेट लॉस किया काफी। तो जब मैं कॉलेज पहुंचा तो कोई ये नहीं कह पा रहा था कि ये लड़का कभी मोटा था। Which college you were in? Which college? Sorry. So I studied at Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology. In Gujarat. I should have warned you about asking the name of the college. बहुत लंबा है। It's okay. Ambani College, Gujarat. Let's carry on. Ambani College, Gujarat. Yes, that makes sense. तो गुजरात में 4 साल रहा मैं। वहाँ पे सबसे बड़ा मेरा, जैसे कहते हैं ना, फिटनेस जर्नी में दोस्त था यूट्यूब। मैं चीज़ें देखता था, जो अच्छे अच्छे चैनल्स थे उन्हें सब्सक्राइब कर रखा था। वहाँ पे ही योगा सीखना शुरू किया, यूट्यूब से ही। वहाँ पे एक जिम था, वो भी मैं जो यूज़ करता था यूट्यूब देख देख के लोगों की बातें सुन के। वाज नॉट अ ग्रेट अप्रोच टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है उसे आपकी नीड्स नहीं पता होंगी। हर आदमी का एक अलग फिटनेस लेवल होता है, अलग जेनेटिक्स होते हैं, अलग मोबिलिटी लेवल्स होते हैं, अलग गोल्स होते हैं, जो कि शायद ही कोई यूट्यूब का वीडियो आपके लिए कैन बी
चांस की बात है कि आपके लिए बनाओ, पर नहीं होता यूजुअली. It's too generic. It's too generic. It's too generic. You somehow need some kind of personalized direction when you are serious about any fitness journey. तो वो नहीं था. मैं गलतियां किए जा रहा था और उनसे सीखे जा रहा था. मार्शल आर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट था. कॉलेज में जब जब अपॉर्चुनिटीज मिली तो क्लासेस में सीखा. कॉलेज के बाहर इंस्ट्रक्टर हायर करके सीखा. यूट्यूब पे सीखा. पंचिंग बैग ले रखा था. कंसिस्टेंटली वर्किंग टूवर्ड्स थिंग्स. मतलब एक वो होता है ना, एक बंदा जो इस मैटर में डम्ब है, बट ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट. वो ही इज ट्राइंग टू एजुकेट हिमसेल्फ, ही इज ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम हिज ओन बॉडी. वो पूरा एक एक्सपेरिमेंट फेज 4 साल चलता रहा. एंड आई थिंक दैट हेल्प मी रियलाइज कि अब मुझे ये नहीं करना है, अब मुझे कुछ ठीक करना है. आई नीड टू मेक इट मोर डायरेक्शनल. कॉलेज के बाद में मेरा प्लेसमेंट हुआ था हैदराबाद में. I was working with Deloitte. I was supposed to work with Deloitte and I worked with them for a couple of weeks. Okay. जो रोल था वो काफी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ओरिएंटेड था. And I wanted to be on the business side of things. I never thought I would code for life. So that's where I quit the job, came home, waited Quit for the some job. time. In how much time you quit? मतलब 2 weeks. 2 weeks you quit the job जो आपकी कैंपस प्लेसमेंट लगा था. हाँ, और सारे रिश्तेदार कहने लगे थे कि लड़का पागल हो गया, ये डेलोइट का इतना अच्छा जॉब छोड़ के 2 हफ्ते में आ रहा है. 2 हफ्ते में वो जॉब में छोड़ चुका था और घर आ गया था. इस टाइम वेट किया, इंटरव्यूज देता रहा उन जगहों के जहाँ मैं एक्चुअली जाना चाहता था. एंड लकीली आई गॉट एन इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दिस कंपनी कॉल्ड जिनोव मैनेजमेंट कंसल्टिंग. उनके साथ मैंने 3 साल काम किया बैंगलोर में. That's when the move to Bangalore happened, and I think that city changed a lot of things. That is where most of my development happened. From the professional work experience front, from the learning perspective, when it comes to all these fitness feats, when it comes to being a certified yoga instructor, सब वहीं पे हो. Now I have a little bit personal question क्योंकि जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ अपने ग्रेजुएशन के बाद फॉर मास्टर्स एंड आई वाज लुकिंग फॉर जॉब्स, बहुत बार ऐसा होता है दैट आपके पास उतना स्किल सेट नहीं होता और आप सीखना चाहते होते हो. सो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी समझते हैं कि ना यार मेरे को सीखना तो है इस पर्टिकुलर कंपनी में जाके. जैसे आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी बट यू वांटेड टू गो इनटू कंसल्टेंसी एंड स्किल सेट नहीं था उतना, बट कैपेबिलिटी थी कि हाँ सीख सकते हैं. सो और दैट टाइम ना वो इंटरव्यूज देना, कन्विंस करना, उनको परसुएट करना कि आप मुझ पे चांस लो. Because one thing that I did is कि I went walk in to my desired, जो मैंने लिस्ट बनाई 5 कंपनियों की. मैंने कहा मुझे इन में जाना है. मैं लकीली मुझे दूसरी कंपनी नहीं रख लिया. बट एवरीवन इज नॉट रेडी टू डू टेक दिस. आपके पास उतना एनवायरमेंट होना चाहिए, बैक से सपोर्ट होना चाहिए, या आपकी इतनी विल होनी चाहिए करने की. लेकिन द अदर पार्ट जो लोग लेते हैं वो होता है कि दे वांटेड टू लर्न, सो दे गो फॉर अ जॉब इंटरव्यू, दे अप्लाई, देन दे वांट टू परसुएड. सो व्हाट्स योर होल थिंग इन दिस? क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास काफी एक्सपीरियंस है शिफ्टिंग और छोड़ने का, जो बहुत लोग नहीं करते. You put it in an interesting way. काफी छोड़ने का एक्सपीरियंस है. I would agree to that. That same goes with me also. ना, I'll tell you off camera. नहीं. All jokes apart, मुझे ऐसा लगता है the way times are changing. When you watch these old Bollywood movies, 1970s, कि माँ मैं BA पास हूँ फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही, all that stuff. Where till recently your professional success had a lot to do with your education, with the degree that you hold. And the way I see it going forward, मुझे लगता है कि ये जो सारी degrees हैं, especially the one that I just pursued in MBA, it's going to be irrelevant very very soon. Why do you say that? उस वक्त की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पे आपकी डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट आपका स्किल सेट है. और वो फर्क नहीं पड़ता कि वो स्किल सेट आपने किसी कंपनी के साथ काम करते हुए एक्वायर किया, किसी डिग्री में एक्वायर किया, या खुद का एक फेल्ड स्टार्टअप आपने किया, पर उस स्टार्टअप में आपने वो स्किल सेट एक्वायर किया. व्हाट रियली मैटर्स इज, डू यू हैव अ स्किल सेट and can you show it? And that's about it. I really think that we are in these interesting times where soon these degrees that would just get you money would
become obsolete and irrelevant कुछ सालों में. So why did you do MBA? Because you had a सीखना job. चाहता था अच्छा. क्योंकि I never had formal education in business. मेरा काम कंसल्टिंग में था, सेल्स में था, मैं कर तो वो रहा हूँ, पर जो मेरे ऑन द जॉब ट्रेनिंग है उसके अलावा बिजनेस स्किल्स मेरे हैं नहीं, और हैं भी तो नॉट दैट आई हैव यूज्ड देम एवर. So when you do an MBA from a good school, I was lucky enough कि मेरा GMAT स्कोर अच्छा रहा, मेरा स्कूल अच्छा रहा, तो वो सिर्फ एक डिग्री नहीं रह जाती. इट बिकम्स एन एक्सपीरियंस दैट लिटरली लिव्स विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. So it's not just about learning and degree, it's also about the kind of experience, the kind of exposure it has got me. हम लोग 150 लोगों का हमारा कोहोर्ट है और 40 नेशनैलिटीज हैं उन 150 लोगों में. सो आई थिंक इट्स a very unique experience. So Rohan, my final question to you is, as you have excelled in so many domains, either it's when it comes to engineering, then doing a corporate job, and in fitness, जहाँ पे आपने योगा इंस्ट्रक्टर बने आप और आपकी पूरी एक योगा जर्नी है, और अब आप एक एंटरप्रेन्योर हो. So I want you to give 3 pieces of advice to a young boy or girl, college going boy or girl, who aspires to be into fitness industry, and a separate 3 piece of experience a person who aspires to be in a corporate job after engineering or MBA. Because आपकी 2 different successful life stories हैं. So Well, thanks for the kind words, क्योंकि कुछ लोग मुझे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी बुला सकते थे, पर तुमने वो नहीं किया, शुक्रिया उसके लिए. Anyways, coming back to your question, I think मैं इसे ऐसा रखना चाहूँगा कि एक आपकी कॉर्पोरेट लाइफ, और दूसरा इंस्टेड ऑफ फिटनेस आई वुड से कि जो लोग एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, या जो लोग फिटनेस एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, या फिटनेस ट्रेनर्स बनना चाहते हैं, देयर इज़ एंड आई विल स्टार्ट विद दैट पार्ट फर्स्ट. तो जब आप ये डिसीजन लेते हुए आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रात को सोते हुए चल रहा है कि मुझे फिटनेस में आगे कुछ करना है, या आई डोंट नो क्रॉसफिट सिखाना है, लिफ्टिंग सिखाना है, जिम एक्सरसाइजेस सिखानी है, योगा ट्रेनर बनना है, मैं कहूँगा कि द फर्स्ट थिंग यू हैव टू स्टार्ट विद इज स्पेंड टाइम ऑन इट. गिव some time to it every single day so that you know what you're doing. और अगर वो मोटिवेशन आपका लंबे समय तक रहता है, दैट्स व्हेन आई थिंक कि आपको उसे परस्यू करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि मुझे 2 महीने से मैं जिम जा रहा हूँ और मैंने लाइफ गोल बना लिया कि मुझे इंस्ट्रक्टर बनना है. तो आई थिंक दैट विल बी टू अर्ली. थोड़ा समय दो उसे, खुद के स्किल्स इंप्रूव करो, एंड एट द सेम टाइम सी फॉर योर सेल्फ इफ़ यू वांट टू डू इट, बिकॉज एट टाइम्स इट गेट्स वेरी चैलेंजिंग. सो work towards your craft in the beginning. Don't rush into the decision. That's B. And C would be the day you think you're ready, the day you think you have a skill that people demand. You see that gap in the market कि एक चीज़ की डिमांड है, सप्लाई कम है, आप वहाँ फिट करते हो. और चाहे कितनी भी सप्लाई हो, चाहे 1 लाख योगा इंस्ट्रक्टर से इस शहर में क्यों ना हो, अगर आपको लगता है आप अच्छे हो, जंप इनटू इट, जस्ट डू इट. The worst you have to accept is failure, that you are not able to sell yourself, and that's absolutely fine. That's going to help you in your other ventures. So embrace it. And मतलब मेरे साथ भी obviously ऐसा नहीं हुआ है कि सब कुछ एकदम perfect line में चला है. I've had my days when I'm looking for something and not finding it and not getting the results. So and that is where you learn the most. You really don't learn in the good times. So that's the thing. Coming to these college-going kids who want to life in corporates, मेहनत करो यार बहुत सारी, वो इंडिस्पेंसिबल है. मतलब पहली चीज़ ये है कि जो सीख रहे हो आप, चाहे जर्नलिज्म कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है, बी वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट इट. आई मीन देयर इज़ अ सेइंग ना, एम्ब्रेस द सक, कि जो चीज़ रोज़ करनी पड़ रही है मंडे नाइट जस्ट सक्स, बट just please live through it. It's really important. हमारे के एक नॉर्म बन गया है कि मतलब चिल करना कूल है, काम करना बोरिंग है. मतलब वो जो बंदा काम करता रहता है वो बोरिंग है. इट्स एक्चुअली द अदर वे अराउंड, बाय द वे. मुझे वो बंदा ज़्यादा कूल लगता है who's laser focused on all that stuff. That's one thing. The other thing I want to tell all these college going kids, no matter what role you take up in life, learn to talk. Even if you're naturally an introvert, no matter who you are, where you come from, learn to talk. Hindi, Angrezi, भाषा मैटर नहीं करती है. Learn to talk.
एंड दैट्स रियली इम्पोर्टेंट. आप कितने भी अच्छे हो, अगर आप बोल नहीं सकते तो आप खुद को बेच नहीं सकते. अगर आप बेच नहीं सकते तो बहुत समस्या है आगे जीवन में. इट्स गोना बी अ टफ रोड अहेड. एंड द थर्ड वन इज हैव फन. Have as much fun as you can after you have done all your work. Homework करके जितना चाहे खेलो, कोई दिक्कत नहीं है. Just giving an analogy. मतलब do work, then pause that and have fun, and then again go to work. Don't mix. I completely agree with the work hard, party hard philosophy. If you have a relationship, you want to put time into it, and if it's a worthy relationship, do it. If you are someone who loves clubbing, want to put time into it, do it. Just make sure you keep doing it, but make sure you also have time for the right things. Point. As much as you're not killing yourself in the long term, do it all. Amazing. Thank you so much. Yeah. Thank you so much for doing this. It's been such a great pleasure to have you on Pinkcity Podcast. You are the right person for this podcast. मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा इंसान जो जयपुर से उठ के आज इतना कुछ कर रहा है और जिसकी जर्नी बहुत रिजेंबल करती है हमारे स्मॉल टाउन बच्चों के साथ. So I guess you are one of the big success story for me at least. बाकी लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं बहुत इंस्पायर हुआ. वेरी वेरी काइंड वर्ड्स लक्ष्य. वेल, जयपुर ना उस शहर में एक बात है कि लोग पैदा होते ही स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, और इतना पोटेंशियल है उस शहर में. इतने लोग इतने सक्सेसफुल हैं और इतने लोग सक्सेसफुल होने वाले हैं. आई थिंक आपके पॉडकास्ट के कंटेंट के लिए कभी कमी नहीं पड़ने वाली है. पिंक सिटी पॉडकास्ट विल हैव सो मेनी पीपल आउट देयर, एंड दैट्स अ थिंग विद जयपुर कि लोग जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं. तो I wish all the people viewing it a very the best of success in their endeavors. अच्छा करें, कुछ नाम वाम रोशन करें घर का, जयपुर का, ऐसे कॉलोनी का. So yeah. Thank you so much, Ron. Yeah, and also the Instagram link and my YouTube account link would be in your description. So the people viewing it, please check it out. Contact me if you need any kind of guidance. I just don't do it for, money is a part of it, but I want to change people's life one spinal vertebrae at a time. So reach out, feel free to reach out.